Tempers are flaring on all sides ahead of the elections. A video of RJD MP Meesa Bharti has now gone viral, and this is a statement she made to the media on the 7th of April, where she said, if the INDI bloc comes to power, Narendra Modi and other BJP leaders will be put behind bars. First up, let's listen to the statement that she made on the 7th of April. किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं, इनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हों। The BJP has hit back strongly at the RJD MP for her comments, pointed out how a leader who herself is out on bail and whose family is embroiled in multiple scams is pontificating on corruption. BJP leaders say INDI bloc must be delusional if they think they can come to power, and the threat only shows how opposition is getting desperate ahead of elections. अभी मीसा भारती ने अभी का ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, आप बोलते हो मोदी मोदी मोदी, और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी क्या। इनकी निराशा, इनकी हताशा, इनका फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है। मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूं। ऐसा फ्रस्ट्रेशन, ऐसा निराशा, ऐसी निराशा, और लोगों से मीसा भारती पर अंजाम है कि नहीं है, जो खुद बेल पर हो, जिनसे खुद पूछताछ हो रही हो, वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। Meesa Bharati should acquaint ourselves with a large number of scams which are associated with her family. She should familiarize with herself. Secondly, we are a country anchored in the rule of law. And in India, if you commit wrong, it is the concerned courts and the agencies which will deal it. It's not that Meesa Bharti can get up one morning and say, isko andar kar do, usko andar kar do. The other thing is that they are coming to power. That's also, I think, delusional. कि अभी विपक्ष का जो कैंपेन का स्तर है वो इस प्रकार गिरता जा रहा है। अब मोदी जी मरेगा इस भाषा तक विपक्ष उतर आया है। आरजेडी की मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कह लेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। अब इस स्तर पर ये अगर कैंपेन विपक्ष का जा रहा है कि कोई मरने की बात कर रहा है, कोई जेल में जाने की बात कर रहा है। Meesa Bharti is not the only one. Over the last few months, be it Rahul Gandhi or Mamata Banerjee, top leaders of the opposition have laid out their agenda before the people of this country. Let's listen into some reactions coming in. अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। ইলেকশনের পরে এখানে তো আমাদের সরকার থাকবে, আর আপনি সবাইকে জেলে পাঠাবেন কোথা থেকে? আপনি যে বলছেন সবাইকে জেলে পাঠাবো জুন মাসের পর, তা আমিও তো বলতে পারি সরকার তো আমাদের এখানেই থাকবে, তাহলে আপনাদের সবাইকেও আমরা জেলে পাঠাবো। Well, Meesa Bharti's diatribe comes amid Prime Minister's continuous attack on those mired in graft in the opposition ranks. Even yesterday, amid raging row over Meesa's commentary, Prime Minister repeated his guarantee of graft-free governance. Speaking in Rajasthan, Prime Minister said that irrespective of threats coming from his political rivals, crackdown will continue. इंडी अलायंस के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अब मजा देखिए देश में क्या चल रहा है। एक तरफ मोदी है जो कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये सारे लोग
जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। India bloc comes to power, they'll put BJP leaders, especially Prime Minister Narendra Modi, behind bars. The Bharatiya Janata Party is quickly highlighting and pointing out to RJD the multiple corruption cases in which the Yadav family members are in fact being investigated. What are those scams? It's the fodder scam. Apart from fodder scam, there's the land for job scam. And not just this, there's the IRCTC scam as well, for which the family members are being investigated. Let's open this up and let's go across to our guests. We're joined by Jairam Viplab, BJP spokesperson, Rajagopalan, senior journalist, and Chittaranjan Gagan, RJD spokesperson. Good morning to all of you. Chittaranjan Gagan ji, भारतीय जनता पार्टी याद दिला रही है कि फॉर्डर स्कैम है, IRCTC स्कैम है, लैंड फॉर जॉब स्कैम है, तो यादव परिवार तो खुद ही, लालू प्रसाद यादव का परिवार तो खुद ही इन सारे स्कैम्स में फंसा हुआ है। तो मीसा भारती क्या बीजेपी लीडर्स को जेल में डालने की बात कर रही हैं? ऊपर कहीं बात करना नहीं चाहते, कहीं बोलते नहीं। प्रधानमंत्री जी का भाषण देख लीजिए, गृह मंत्री जी का भाषण देख लीजिए, भाजपा के नेताओं का भाषण देख लीजिए। कभी भी जो जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की समस्याएं हैं, इस पर कभी नहीं बोलेंगे। केवल मुद्दा को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण मैं सुन रहा था, भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले। भ्रष्टाचारी को कौन बचा रहा है? आप जिन जिन लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप लगे, भाजपा में चले गए, आप किसी को राज्यसभा का मेंबर बना देते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो भ्रष्टाचारी को कौन बचा रहा है? और ये जो कर रहे हैं, अभी नड्डा जी बोल रहे थे, गाली दे रहे हैं। आप गाली तो आप देते हैं, आप तो जो संसद में महिला को सिर्फ नेका करते हैं, आप तो 50 करोड़ का कौल गर्व करते हैं, आप तो कांग्रेस की विधवा करते हैं, आप तो दीदी करते हैं। गाली कौन दे रहा है? आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा कि आप पहले प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले जवाहरलाल नेहरू से लेकर और इनके पहले जो भी प्रधानमंत्री हुए, ऐसा मामला आया, लोगों ने कहा, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि गाली है। हमने कि अभी जो ठीक है जयराम विप्लव, कल के दिन यानी नहीं, मुझे थोड़ा जवाब भी तो देना पड़ेगा ना सर, एक ही व्यक्ति नहीं बोल सकता। गगन जी जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आप एक सांस में बहुत आरोप लगा रहे हैं। विप्लव जी, अगर कल के दिन अगर मीसा भारती बीजेपी में शामिल हो गई, तो वो आपके लिए करप्शन फ्री हो जाएंगी क्या? देखिए, सबसे पहले जो मुद्दा है उस पर फोकस रहते हैं, क्योंकि चित्तरंजन जी ने तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। अगर इनके ऊपर केस हो ना, तो इनको भी डिफेमेशन केस में जेल जाना पड़ेगा। इनके पास कहीं कोई सबूत नहीं है। शूर्पणखा किसने कहा, कॉल गर्ल किसने कहा, इस प्रकार की मानसिकता से बाहर निकलिए। मीसा भारती ने जो कुछ प्रधानमंत्री जी को धमकी देने का प्रयास किया, जिन शब्दों का प्रयोग किया, जेल जाने की धमकी दी, वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान है। भारत की 140 करोड़ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का अपमान है। और ये पहली बार नहीं है जब पत्थर प्रधानमंत्री जी के ऊपर फेंका गया हो। इंडिया अलायंस तो लंबे वर्षों से, जब यूपीए था तब भी कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार ऐसा किया जाता रहा। लेकिन आज चूंकि मीसा भारती की चर्चा है, तो रिसेंटली 3 बयान सुन लीजिए। लालू प्रसाद यादव ने भरी रैली में कहा कि प्रधानमंत्री निसंतान है। कैसे शब्दों का प्रयोग किया था उसको दोहराऊंगा नहीं। दूसरी, झारखंड के राजद के एक नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री की खोपड़ी में गोली मार देने का मन करता है। और तीसरा, मीसा भारती को प्रधानमंत्री को जेल भेजने का धमकी देना पड़ता है। अब आप ये देख लीजिए, इस प्रकार नफरत की इंतहा में राजद डूब चुका है। हार की बौखलाहट से इनके अंदर कितनी पॉलिटिक्स है। राजगोपालन जी, हरदीप सिंह पुरी रिस्पॉन्डेड टू दिस सेइंग कि पहली बात इंडिया ब्लॉक चुनी जाएगी, लोगों द्वारा सत्ता में आएगी। ही हिमसेल्फ he says that the opposition needs to reflect on it. उनके हिसाब से यह होगा ही नहीं। How do you respond? नहीं, जो मीसा भारती का स्टेटमेंट है, ये खतरनाक बयान है, ठीक नहीं है, क्योंकि वो खुद जेल से रह चुकी है, उनकी परिवार पूरा जेल में रह चुकी है। जितना भी खोया है, लालू यादव, मीसा भारती का एक जवाब देना पड़ेगा। नीतीश कुमार को भी खो दिया भाई, आरजेडी वाले, खत्म हो गया नीतीश कुमार आपसे। अभी देखो कल अरविंद केजरीवाल, जितना भी है सारा आपको, जितना भी आपको दोस्त है,
ये सब जेल जाने का लाइन पर है। 2024 चुनाव के बाद अगस्त से 2025 जनवरी फरवरी के बीच में नरेंद्र मोदी ने कल ऐलान कर दिया है सबको जेल भेजेंगे, इंक्लूडिंग मीसा भारती। सो इसीलिए तो एक तरफ भ्रष्टाचार को बचाने वाले हैं मोदी, इसीलिए तो घर घर में जाकर के घुसूंगा मारूंगा कर दे, घर घर में जाकर के कैदी बना दूंगा, ये भी चक्कर है। बट जनरलाइजेशन इसका नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं, डजंट मीन दैट ही इज गोना पुट बिहाइंड बार्स ऑल द लीडर्स। सभी को उठा के जेल में नहीं डालेंगे। अगर आप करप्ट हैं, अगर आपके खिलाफ केसेस है, अगर वो साबित होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तब आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। गगन जी, ही वांट्स टू कम इन। यस गगन जी बोलिए। अभी जो सुन रहे थे, सवाल यह है कि जो मैंने पहले कहा कि उनकी भाषा जो है वह उसका भी जो बोल रहे थे उसका साबुत देंगे क्या, उसका सर जो हम बोले। सवाल यह है कि अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला आया है और माननीय वित्त मंत्री जी के पति ने कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, वो आप जिस पर घोटाला का आरोप है वह आपको चंदा देता है, जो आपको चंदा देता है उसको आप जो है तो कंट्रैक्ट देते हैं। नहीं, इसमें तो और भी, लेकिन और भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उस लिस्ट में। आप ऐसा कह रहे हैं जैसे केवल सारा पैसा बीजेपी को ही मिला हो। उसमें टीएमसी को भी पैसा मिला है, कांग्रेस को भी पैसा मिला है। घोटाले में आया है पूरा। नहीं क्रॉस, एक सेकंड गगन जी फॉलो अप सवाल तो पूछेंगे ना, फॉलो अप सवाल तो पूछेंगे। आप कह रहे हैं कि पैसा इन्हीं को जा रहा है, लेकिन उस लिस्ट में तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम भी है, आरजेडी भी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी क्या संविधान से पढ़े हैं? क्या उन्होंने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम किया कि नहीं किया? उंगली उठाइएगा बाद में, सुनिए पहले। और आपने तो गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहा है। आने के बाद आरजेडी का कितना पैसा मिला है? आरजेडी का कितना पैसा मिला है? आरजेडी का कितना पैसा मिला है? बताइए। घोटाला में कितना पैसा मिला बाबू? ठीक है विप्लव जी, सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड्स है कह रहे हैं। गगन जी कह रहे हैं कि जो खुद ही भ्रष्ट है वो भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की बात कर रहे हैं। जवाब दीजिए। अच्छा, पता है जब बिहार में जब पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति थी, तब बिहार में सत्ता में जो ये कुछ दिनों के लिए अभी आई थी ये पार्टी, उसके बाद फिर चितरंजन जी सुन तो लीजिए, शराबबंदी वाले राज्य में जब 17-18 महीनों के लिए राजद शासन में आई, तो पड़ोसी राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल के शराब कारोबारियों द्वारा इनको चंदा मिला है। लेकिन अकेले राजद शासन में नहीं आई थी विप्लव जी, अकेले आरजेडी जो है, राजद जो है, सरकार नहीं चला रही थी, नीतीश कुमार के साथ चला रही थी। आज वही नीतीश कुमार आपके साथ है। हाँ, तो वो जब सत्ता में थे राजद, तो नीतीश कुमार जी की पार्टी को तो नहीं मिला है शराब कारोबारियों से चंदा, लेकिन वो चंदा तेजस्वी यादव को मिला और धंधा शराब का खूब फल फूल रहा था। शराब माफियाओं को संरक्षण देना। देखिए, जैसे रावण के कैद में लक्ष्मी जी, कुबेर जी और तमाम अच्छी शक्तियां थी, वैसे लालू के परिवार का जब शासन आता है। एक मिनट गगन जी, अगर आप लगातार बीच में बोलते रहेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। विप्लव जी को खत्म करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। 10-20 सेकंड दीजिए, कंटिन्यू मत चिल्लाइए। देखिए, सबसे पहले तो मीसा भारती को अपना नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम पर उनके पिताजी ने नाम रखा था। आज उन्होंने कांग्रेस की गोदी में बैठकर फिर से वही छिपी हुई अपनी मंशा जाहिर कर दी है तानाशाही लागू करने की। इमरजेंसी का जो प्रैक्टिकल इंदिरा गांधी ने किया था, आज नहीं, एक मिनट विप्लव जी, गोदी में बैठने वाली बातें मत कीजिए। नहीं, इस तरह की ऐसा मत करिए। आप महिला के बारे में बात कर रहे हैं, कोई किसी गोदी में बैठ रहा है, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। ठीक है गगन जी बोलिए। ये एक जनरल फ्रेज है कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की गोदी में बैठ गई, इसमें कोई ठीक है। नहीं, आप क्योंकि मीसा भारती की बात कर रहे थे, आप पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे थे, आप खासतौर पर मीसा भारती की बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ठीक है, बचना चाहिए ऐसा बयान देने से। गगन जी आप बोलिए, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं, दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं। अभी मैं आपको समय दे रही हूं, अब आप बोलिए और फिर इंतजार कीजिएगा दूसरों के बोलने का। अपनी बात रखिए गगन जी। नहीं, अभी आप भाषा देख लीजिए, मीसा भारती गोदी में बैठ गई, इससे भद्दा गाली महिलाओं राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की गोदी में बैठी हुई
है कि नहीं बताओ ना। जिस कांग्रेस के खिलाफ लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए लालू जी आए थे, उसी की गोद में बैठ करके पूरी पार्टी आज प्रचार कर रही है। पूरी पार्टी आज लोकतंत्र बचाने की फिर से ढोंग कर रही है। बात कर रहे हैं। ओके, बिफोर आई रैप अप, राजगोपालन जी, अभी फिलहाल एक मिनट, बिहार में राजनीति में क्या चल रहा है? यू कैन प्रीटी मच गेट एन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम व्हाट दीज स्पोक्सपर्सन्स आर सेइंग। एक मिनट, चितरंजन गगन जी, जबरदस्ती बोलते रहने से जरूरी नहीं है कि आपकी बात जनता तक पहुंच जाएगी। जनता को जितना सुनना है उतना ही सुनेगी। राजगोपालन जी, लालू प्रसाद यादव के लिए कानून बनाए थे, उसको किसने पढ़ा था? राहुल गांधी ने पढ़ा था। गगन साहब आके याद रहना चाहते हैं, ये उसके लिए बचाव के लिए है। वो सेम आदमी आपको गाली गलौज दे रहे हैं। सो मीसा भारती का बयान खतरनाक बयान है, बिल्कुल उसको वापस लेना चाहिए। ये जो बिहार में जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, गर्मा हुआ है। सो लालू प्रसाद यादव बिल्कुल हारने का मूड पर है। That is why it's all coming out. Okay, all right. With that, I'm wrapping up the debate. बहुत-बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आगे कई और खबरें। Stay on with us.